कॉलेज में निकला था, स्कूल में कुछ कंप्यूटर साइंस की नॉलेज नहीं थी, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट था मेरे पास। तो फर्स्ट ईयर में गया, लैब में कुछ 10 प्रोग्राम मिलते थे, हेलो वर्ल्ड से लेके फैक्टोरियल निकालने तक। तो बड़ा मेरे को डिफिकल्ट लगता था यार, ये क्या चीज़ है, मतलब क्या कोडिंग क्या होता है, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था। और मेरे दोस्त कोड शेफ पे क्वेश्चन करते होते थे। आप कोशिश ये रहनी चाहिए कि 6 महीने आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पे एटलीस्ट स्पेंड करो, क्वेश्चंस करो, कम से कम 100 प्रॉब्लम्स आप जरूर सॉल्व करो। तो वेब एक ऐसी चीज़ है जो आप 2 से 3 महीने में सीख सकते हो और बहुत ही कूल प्यारे से नाइस से प्रोजेक्ट बना सकते हो। इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट रिज्यूमे में रखो। प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट। गैल्विन करके एक बुक आती है, उसके शुरू के कुछ 10 चैप्टर्स हैं, आप वो पढ़ लोगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। Hi everyone, this is Harsh Goyal. I'm back again with yet another amazing video. So in this video, I'm starting with a new series known as Coding Pe Charcha, where we'll bring people and talk about how have they pursued the journey, what were some of their learnings through their story, and how we can implement those learnings into our journey ahead and make our paths more easier. So today in the first episode, I have with me a very special guest. He is Prateek Narang, also known as Prateek Bhaiya by his students. He has taught programming to more than 50,000 coders all over India, and he has an amazing personality. He has built his interactive resume known as prateeknarang.com. You can check it out in the I'll provide the link in the description below. Apart from that, we had an amazing conversation. We talked about what is more important, data structures algorithms or competitive programming. We talked about how you can balance projects and DSL goals, and how you can better utilize your summer vacations that is coming ahead for your internships and placement, and how you can prepare and utilize that time in the most efficient way. Apart from that, we talked about various other topics, his viewpoint on paid courses and a lot of things. So this is going to be really very amazing, so I would say do watch this video till the end. Apart from that, if you haven't already subscribed, liked and shared this video, go ahead and do it right now, because we are coming up with amazing content. So let's see this amazing conversation between me and Prateek Bhaiya. So hi everyone, today I have with me Mr. Prateek Narang. So he is current SG3 at Google, and he has taught more than 50,000 programmers all over India and has contributed a lot to the programming community. So before starting with today's amazing video, I will like to know more about Prateek's journey, how he has been into current position, and how he started with this amazing journey. Hi everyone, so my name is Prateek Narang. People also call me Prateek भैया, जो मेरे से जूनियर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो सो आई स्टार्टेड माय कॉलेज इन 2012। बिल्कुल आप लोगों की तरह स्टूडेंट था, छोटा सा शहर है पंजाब में, जलंधर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो आज भी वहीं से वीडियो बना रहा हूँ। तो वही है, कॉलेज में निकला था, स्कूल में कुछ कंप्यूटर साइंस की नॉलेज नहीं थी, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट था मेरे पास। तो फर्स्ट ईयर में गया, लैब में कुछ 10 प्रोग्राम मिलते थे, हेलो वर्ल्ड से लेके फैक्टोरियल निकालने तक। तो बड़ा मेरे को डिफिकल्ट लगता था यार, ये क्या चीज़ है, मतलब क्या कोडिंग क्या होता है, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था। और मेरे दोस्त कोड शेफ पे क्वेश्चन करते होते थे। तो वही है यार, फिर थोड़ा एफर्ट मारा, दोस्तों के साथ बैठा। सेकेंड ईयर एक्चुअली थर्ड सेमेस्टर में मैंने प्रोग्रामिंग वगैरह स्टार्ट किया, बहुत मेहनत करी, DSL को सीखा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखा। फिर कॉलेज से एक इंटर्नशिप लगी सैनडिस्क में। बहुत सारे रिजेक्शन भी आए थे, अमेजोन से, जोमेटो से, और 2-3 कंपनी से, जहाँ पे मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था, ऑनलाइन राउंड क्लियर नहीं हुआ था। बट फाइनली सैनडिस्क में एक इंटर्नशिप लगी थी। फिर वहाँ से अच्छा परफॉर्म किया, प्री प्लेसमेंट ऑफर लिया, और फिर फोर्थ ईयर आ गया करते करते। फिर वही है, टीचिंग का मन था तो फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया बच्चों को। तो तब से अब तक मैं पढ़ा रहा था 2020 तक। और फिर रिसेंटली अब कोडिंग ब्लॉक्स के साथ था इतने टाइम तक। और अभी गूगल ज्वाइन किया मैंने लास्ट 6 मंथ्स पहले, और यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3 हूँ। तो गूगल में भी कुछ इंटरेस्टिंग नए चैलेंजेस हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो और गूगल में मज़ा भी आ रहा है, तो बढ़िया चल रहा है अभी तक सब। इसके अलावा और मैं आपको क्या बताऊं अपने बारे में हर्ष, कुछ और आप पूछना चाहते हो? हाँ, अभी एक और छोटा सा स्टार्ट किया है आप लोगों को हेल्प करने के लिए, जिसको मैं कोडिंग मिनट्स बोल रहा हूँ। कोविड की वजह से काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल और फैमिली प्रॉब्लम्स आई हैं। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मैं आपके लिए एक अच्छे कोर्सेज लेके आ रहा हूँ, जो मैंने सीखा, ताकि आप भी वो सब चीज़ें सीख के अप्लाई कर पाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अभी आप जो क्वेश्चंस हैं वो आप अर्श पूछिए। Thank you so much, Bhaiya, for introducing yourself. It is amazing journey that you have explained. So
taking experiences from this journey, like you have taught a lot of people, many of your taught people have been into Google, into Microsoft, into a lot of companies. So like I have gathered some questions from these people. Like I used to get these questions on my LinkedIn, so I have gathered some questions and we'll be discussing these questions with Prateek Bhaiya from his experiences. What is the best strategy? What is the best thing to do right now? So Bhaiya, first thing is, like, there is always a buzz around competitive programming and data structures and algorithms. So like, is it the same thing, or like which should be given more importance? Like what is your perspective in terms of, like, when we talk about competitive programming versus DSLOs? तो यार इसको ऐसे समझना चाहिए कि लोग दोनों को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यू कैन सी इट्स अ एडवांस लेवल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो जैसे मान लो कार ड्राइविंग करना एक स्किल है, ठीक है, बट उस कार को एक F1 रेस में ड्राइव करना एक अलग स्किल है, ठीक है। तो आप कार ड्राइविंग में आप इतनी मास्टरी कर पा रहे हो कि आप हाई स्पीड पे गाड़ियां दौड़ा पा रहे हो अलॉन्ग द सर्कल्स और compete कर पा रहे हो। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज स्पोर्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसको आप एज अ स्पोर्ट प्ले करते हो, बहुत सारे कोडर्स के साथ compete करते हो, रैंक लाते हो। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आप इसलिए सीखते हो ताकि आप कार चला पाओ, किसी कंपनी में जाओ तो आप काम कर पाओ, ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल स्किल। तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो या ना करो, डजेंट मैटर, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स होनी चाहिए इफ़ यू आर एमिंग फॉर अ जॉब ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और अ बैकएंड इंजीनियर और अ प्रोडक्ट इंजीनियर। तो ये फंडामेंटल्स हैं, कॉलेज में ये सब्जेक्ट्स होते हैं। उतने अच्छे से नहीं पढ़ाता कोई भी कॉलेज, आपको खुद ही पढ़ना पड़ता है। कोर्सेज से पढ़ो, बुक से पढ़ो, वीडियो से पढ़ो, जहाँ से आपको अच्छा लगता है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बट ये फंडामेंटल्स मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बेसिक्स को स्किप करके कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस पे भागते हैं यार। बट वहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, बिगिनिंग में मैथ्स के क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एक फॉर्मूला बन रहा है, उसको 2 घंटे लगा के हमने फॉर्मूला निकाला मैथ्स का और वो फॉर्मूला कोड के सबमिट कर दिया। दैट्स नॉट the real use case. The real use case comes when you learn to apply data structures to solve problems, ठीक है। जैसे मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। एक सुडोकू सॉल्व करना है तो हम एक 2D मैट्रिक्स डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर हम अपना लॉजिक बिल्ड करते हैं, उस लॉजिक को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो वो एकदम से नहीं आता, आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखो, प्रैक्टिस करो, करते करते आएगा, ठीक है। नो वन कैन मास्टर इन लाइक 30 days और 15 days. So it's a skill that will take time to master. Yeah. That's super amazing. But like, when we talk about a particular student, so he is generally confused कि उसको कितना DSA करना है, कितने उसको projects करने हैं, उसके resume, how his resume should be balanced. Like when we talk about product-based companies, so what portion of the interview will be based upon data structures, algorithms, how much importance he should give to projects. So like, what is your perspective on how we can balance projects and DSL goals, and like how should our resume look like, particularly for when we talk about a product based company? मोस्टली मैं इस टर्म में बात कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि आप एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट ईयर मान लो आपने चिल करते हुए निकाल दिया, आपने बेसिक कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, इतना मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर में किया। सेकेंड ईयर में आपके पास 1 साल का टाइम है, तो आप कोशिश ये रहनी चाहिए कि 6 महीने आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पे एटलीस्ट स्पेंड करो, क्वेश्चंस करो, कम से कम 100 प्रॉब्लम्स आप ज़रूर सॉल्व करो, ठीक है। सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लो, लिंक लिस्ट क्या होता है, हैश टेबल क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, ग्रीडी एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। तो ये टॉपिक्स आपके 6 मंथ्स में कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। और आपको मज़ा आ रहा है, आपको लग रहा है अब मेरे को ये अच्छे से आ गया है, मैं एडवांस लेवल पे जाना चाहता हूँ, तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पकड़ो, कोड फोर्सेस पे अकाउंट बनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, ठीक है। div 3, div 2, div 1, तो कोशिश करो आप div 2 तक पहुंच पाओ, जिसकी आई थिंक 1600 से 1900 रेटिंग वाला लेवल होता है। दैट विल अगेन टेक समवेयर अराउंड 6 मंथ्स, ठीक है। बट उसी टाइम विंटर में कुछ वेकेशन आ गई, 1 महीना आपके पास है फ्री, तो आप सारा दिन तो 8 घंटे कॉम्पिटिटिव नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स वेरी लाइक बहुत सारी मेंटल एक्सरसाइज है कॉम्पिटिटिव में, ठीक है। तो कुछ आपको लाइट करने का मन है तो कुछ ट्यूटोरियल्स देख लिए, कुछ कूल सा प्रोजेक्ट देख लिया, बना लिया। ज़रूरी नहीं है आपका आइडिया एकदम रॉक सॉलिड होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। तो आप किसी एग्जिस्टिंग आइडिया को क्लोन करो, खुद से बनाने का ट्राई करो। मान लो कुछ मेरे को ऐसी वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन बनानी है जैसे मैं और अर्श कर रहे हैं, तो दोस्त के साथ बनाना है, तो क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, लेट्स से socket.io यूज़ होगा, तो चलो पढ़ लेते हैं उसको, ठीक है। तो बेसिक HTML CSS वेब फ्रंट एंड वेब बैक एंड, इनके बारे में भी आप 1-2 महीना लगा के पढ़ सकते हो, ठीक है। सो वेब एक ऐसी चीज़ है जो आप 2 से 3 महीने में सीख सकते हो और बहुत ही कूल प्यारे से नाइस से प्रोजेक्ट बना सकते हो। इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट 1 प्रोजेक्ट रिज्यूमे में रखो, प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट
अपने रिज्यूमे में रखो। वेब में जल्दी बन जाते हैं प्रोजेक्ट, मशीन लर्निंग वगैरह पढ़ने में टाइम लगता है, थोड़ा चैलेंजिंग भी है, तो उस पार्ट को आप थोड़ा फोर्थ ईयर के लिए रखो कि ML डेटा साइंस में बाद में पढ़ूंगा, अभी मेरा काम है DSL को अच्छा करना, थोड़ा सा 2-3 महीने वेब पे काम करना, और जब आपका ये इंटर्नशिप प्लेसमेंट सीजन आ रहा है उससे पहले आप अपने DSL को के बेसिक्स रिवाइज कर लो। लीड कोड पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। Achha, and one thing more, like when we talk about students from other branches, like who are not having a CS background, so they generally find difficulty learning CS fundamentals like operating systems, DBMS, and computer networks. So, like, what importance should be given to these subjects? Like, are these subjects asked in the interviews, or can we skip these subjects? Like, what's your perspective on this? तो द थिंग इज यार, बहुत सारी कंपनीज को नहीं पूछेंगी, बट कुछ कंपनीज हैं जो आपको इंटरव्यूज में पूछ सकती हैं, बट इट्स गुड टू हैव नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट OS और DBMS, ठीक है। तो OS के लिए कुछ आपको ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, गैल्विन करके एक बुक आती है, उसके शुरू के कुछ 10 चैप्टर्स हैं, आप वो पढ़ लोगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट्स होने की नॉलेज, इट्स इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, IT इंडस्ट्री में जाते हो तो इट इज़ हेल्पफुल। सो आप वो एज अ मे बी रात को बुक रीडिंग जैसे करते हैं, बुक रीडिंग की तरह रोज 15-20 मिनट लगा लोगे OS पे, आपका काम हो जाएगा, अलग से आपको पूरा दिन खराब करने की जरूरत नहीं है। सेम वो गोज विद DBMS, जब आप वेब डेवलपमेंट करोगे, कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, तो आप एक छोटा सा कोई डेटाबेस लोगे, उस पर काम करना सीखोगे, थोड़ा बहुत डेटाबेसेस के कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, टेबल्स क्या होते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं, SQL वर्सेस नो SQL डेटाबेसेस क्या होते हैं, MongoDB कब यूज होता है, थोड़ा सा आपको पढ़ना है, वो भी 15-20 दिन आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा, या 2-4-5 घंटे की कोई ऑनलाइन वीडियोस आपको अच्छी मिलती हैं, आप वो देख के भी DBMS के बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर करके चलो, ठीक है। तो OS DBMS 2-3 दिन की बात है, टाइम निकाल लो, पढ़ लो, जरूरी नहीं है हर कंपनी पूछे, बट कोई कोई पूछ सकता है। Okay. And भैया like within the coming up of this pandemic and सारा कुछ ऐसा हो गया है कि like there are a lot of resources available. Like students के पास video resources available है, text resources available है, articles available है. Like they are generally confused कि उनको कहाँ time devote करना चाहिए and which is the best strategy. Like should they watch the complete videos of DSA questions and फिर उनको solve करना चाहिए, या should they go through the articles? That is the best strategy. So like what can be done and like what is the best thing? आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस एंड ऑल्सो आपका करंट लेवल क्या है, ठीक है। अगर आप एक अच्छा लेवल अटेन कर लेते हो कोडिंग में, देन गोइंग थ्रू द ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, ट्यूटोरियल्स, एडिटोरियल्स पढ़ के आप जल्दी से चीज़ें पिक कर सकते हो। बट इफ़ यू आर अ बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल प्रोग्राम जहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी आप पिक कर रहे हो, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन वीडियोस, लाइक 10 में से 9 लोग मेरे आइडिया की वो लोग वीडियो से देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस हो, चाहे वो यूडेमी कोर्स हो, चाहे वो कोर्सेरा कोर्स हो, या और कोई प्लेटफॉर्म का कोर्स हो। तो पीपल डू लाइक बिंज वॉचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम द वीडियोज ऑल्सो, बट अगेन इट्स अ टोटली पर्सनल चॉइस। आपको लगता है मैं बुक से पढ़ के इतना अच्छा कर सकता हूँ, इट्स योर चॉइस, ठीक है। वीडियोज का एक फायदा ये है कि किसी मेंटर ने जो नॉलेज 2 साल में या 6 महीने में या 5 साल में गेन की है, mentor can condense that knowledge into like few hours of content, so you get to learn the most important points without wasting a lot of time in applying your brain and figuring out कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है। तो mentors can act as a catalyst in your learning. Definitely. So, yeah, like catalyst is also very important. Like when we talk about in our college also, there are seniors, juniors. So seniors act as mentors, और कोई भी आप एक बंदा mentor ले लो who can guide you ultimately ताकि आप अपने goal को reach कर सको. Generally people are not aware. Like आजकल हम देखते हैं first year, second year के students, they don't have much info and वो सीधा से LinkedIn पे ping करेंगे कि भैया I have done this and this, पर मुझे पता नहीं मुझे आगे क्या करना है. So a role of mentor is really very important when we talk about preparation for anything, right? So coming up to the next question, ki like what is more important? Like should we clear the basics, fundamentals first, or like solving more and more number of questions that will help? Like what is your perspective on this? यार मोर क्वेश्चंस, मैं ये नहीं बोलूँगा तुम 600 प्रॉब्लम लगा लो या 1000 प्रॉब्लम लगा लो, आप 150 या 200 क्वेश्चंस करो, बट दे शुड हैव एनफ कवरेज ऑफ ऑल द टॉपिक्स, है ना। हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। एरेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो मे बी आप एरेज और रिकर्जन टाइप थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस कर लो, बट अदरवाइज आपने 10-20 प्रॉब्लम ग्राफ के लगा लिए, ठीक है।
अब उसमें भी ना डेप्थ बहुत ज़्यादा है। ग्राफ की अगर हम बात करें, बहुत सारे एल्गोरिदम है, ठीक है? तो कोई भी कंपनी आपको रेटाई एल्गोरिदम नहीं पूछेगी। सो क्वेश्चंस वुड बी सिंपल, लॉजिकल, दैट यू कैन थिंक एंड आंसर ऑन द स्पॉट, ठीक है? तो आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है एल्गोरिथम्स में, ठीक है? तो आप बेसिक्स क्लियर करो, बेसिक्स अच्छे से करो, और क्वेश्चन अब जितना टाइम मिल रहा है, जितना टाइम मजा आ रहा है करते रहो, ठीक है? नहीं मजा आ रहा तो ठीक है, कुछ और सीख लो। मतलब आई वोंट से कि 1000 क्वेश्चन करो या 500 करो, 100 150 इतना कर लोगे तो इट्स डिसेंट एनफ नंबर। सही है। एंड भैया लाइक नाउअडेज बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक देयर आर सम पेड रिसोर्सेज, देयर आर सम अनपेड रिसोर्सेज। सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन की आर पेड कोर्सेज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन और नॉट? Like, is it definitely required to purchase a course and do and prepare, or like? ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब आप अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट जनरली ये होता है कि जो पेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं दे हैव मोर प्रोफेशनलिज्म। अगर आप किसी यूट्यूब पे जाके पढ़ रहे हो तो यूट्यूबर सबसे पहले ऐड लगाएगा अपनी वीडियो पे, दैट विल बी अ डिस्ट्रैक्शन। फिर यहाँ पे साइड में कोई अच्छी सी वीडियो आ गई, किसी सॉन्ग की वीडियो आ गई, यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड कि अच्छा चलो मैं ये देख लेता हूँ। फिर कोई न्यूज़ आ गई, फिर आपने वो क्लिक कर लिया। तो यूट्यूब एज ए लर्निंग, यूट्यूब इज एन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है? तो फ्री वीडियोस मोस्टली आपको यूट्यूब पे मिलती हैं, आप सिंसियर हो, आप फोकस कर पाते हो, वेल एंड गुड। सब लोग नहीं कर पाते। और सारे यूट्यूबर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत कुछ लोग ही हैं जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है? मोस्टली लोग आपको आइडिया दे देंगे, रोड मैप दे देंगे, बट व्हेन इट कम्स टू द टेक्निकल स्किल्स they themselves are not expert in that, ठीक है? So it's maybe better you find a mentor, free or paid doesn't matter, who can guide you with the right set of technical skills. Okay. So, like, it was a lot of knowledgeable gyan that we have got from Prateek Bhaiya. Last thing, like, like next 2 months are very important from each and everybody. Like, whether he's preparing for anything. So, what should be the best strategy for next 2 months? Like, usko kaise prepare karna chahiye next 2 months ke liye, and like short way, आपके तरीके से? समर्स की बात आ रही है तो काफ़ी लोग फ्री होते हैं, कॉलेजेस में वेकेशंस होती हैं। जिन लोगों की डीएसएल को स्किल्स अच्छे नहीं है, इट्स द टाइम टू लर्न द बेसिक्स। जो लोग एक डिसेंट है, इट्स द टाइम टू इम्प्रूव अपॉन दैट। और जो लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, इट्स द टाइम टू लर्न समथिंग न्यू, आइदर थ्रू एन इंटर्नशिप और थ्रू सम प्रोजेक्ट वर्क, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है? एंड मैंने भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, अभी मैंने आपको बताया था, कोडिंग मिनट्स। इफ यू वॉन्ट टू learn with me by paying a very less price, even less than a pizza, I'm creating these courses on codingminutes.com, which will be offered via Udemy. You can go and check out the website. अभी मैं डेटा सक्सेस एल्गोरिथम्स के कोर्स बना रहा हूँ। जो लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं डीएसएल को, दे कैन एनरोल इन दैट कोर्स ऑल्सो, ठीक है? इट्स टोटली स्टूडेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव, ठीक है? मेरा उसमें कोई मोटिव नहीं है उससे पैसे कमाना, जस्ट एनफ सो दैट आई कैन पे द पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन द कोर्स, ठीक है? इंटर्न्स हैं, टीएस हैं, प्रॉब्लम सेटर्स हैं, तो इट विल हेल्प देम बिकॉज दे आर वर्किंग हार्ड टू मेक दिस कोर्स अ सक्सेस। सो बस यही है। First of all, thank you so much for accepting the invitation and guiding students. I believe this will definitely going to help those who are preparing for their upcoming placements or internships. Thank you so much once again for coming, and like we also wish you good luck for your new venture and your life ahead. Thank you so much. Thanks, Harsh. It was pleasure talking to you and your audience also. So stay safe, everyone. It's a very difficult time for each of us, but I pray that all of you remain safe at your homes and soon things get well for everyone. That's all from my side today. Bye-bye. I hope you people like this amazing video. For more such amazing content, do like, share and subscribe this channel. Like, we are coming up with awesome content, and do share your feedbacks in the comment section below, and like I'll be following up with you in the comment section only. So thank you so much. All the best. Good luck. Bye bye.